Hello and welcome students. Welcome to GRS Technical. So students, in this video I am going to teach you summary of the Tiger King, which is a chapter from class 12th boards English. So without wasting our time, let's start the video because this chapter is very much important in your class 12th boards. If you will see class 12th 2020 previous year question paper, then this Tiger King is very much important. So without wasting our time, let's start the video. So the story begins with him. This story refers to the Maharaja Sir Jilani Hung Bahadur of Pratibandhanpuram. Astrologer predict his future when he was just 10 years old. Means this story refers to the Maharaja Sir Jilani Hung Bahadur of Pratibandhanpuram. Okay. Astrologer predict his future when he was just 10 years old. Means जब वो 10 साल के थे तभी उनके फ्यूचर को एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट कर दिया था. ओके. Astrologers say that a tiger will kill him. Means astrologer predicted that a tiger will kill him. Okay. On this, surprisingly, a 10-year-old prince said, Let tigers beware. The boy grows up just like any other royal child raised, such as by drinking the milk of white cow and looked after by English nanny and watching English movies. Okay, means that 10-year-old boys grows up just like any other royal child race, such as boy drinking the milk of white cow and looked after the English nanny and watching English movies. Okay. The Tiger King was of 20 years. Okay. When he was 20, he was crowned king and came to know about the prediction about his death. Means when astrologers say that tiger will kill him, everyone was यार होता है ना कि मतलब prediction about his death. So then onwards he started killing a tiger and put a ban on the tiger hunt in his state. According to the astrologer, he needs to be careful with the 100 tiger even if successfully kills 100 tigers. Means टाइगर मीन्स टाइगर किंग व्हाट हैज डन दैट कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया टाइगर्स को मारना. जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि मुझे टाइगर से खतरा है, टाइगर के द्वारा मेरी मौत होगी, तो उन्होंने क्या किया टाइगर किंग ने कि टाइगर को उन्होंने मारना स्टार्ट किया, टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दिया. ठीक है. और उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने उस वक्त बोला कि तुम कितना भी टाइगर हंटिंग कर लो, 99 टाइगर्स तुम मार सकते हो, लेकिन जो 100 जो टाइगर जो होगा तुम्हें उससे सावधान रहने की जरूरत है. ठीक है. तुम अगर 99 टाइगर्स मार भी लेते हो, इवन इफ यू किल द 99 टाइगर्स, दैट 100 टाइगर विल किल यू. सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर. नेक्स्ट इज one time a high ranking British officer visits his state and wants to go for a tiger hunt. However, the Maharaja declined his wish, and in order to secure the state from the wrath of the British officer, the Maharaja sent 50 diamond rings to the officer's wife, whose worth was rupees 3 lakhs. Okay. So यहाँ से समझो क्या किया कि मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर अराइव होता है प्रतिबंधनपुरम में. ठीक है. And at that time, his wish was, British king wish was to hunt the tiger hunting. Okay. तो महाराजा ने डिक्लाइन कर दिया उसका विश, क्योंकि महाराजा को टाइगर मारना था. और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 100 टाइगर उसे मारना था टाइगर किंग को. ठीक है. और वो जो 100 टाइगर है वो बहुत ही डेंजरस होने वाला है टाइगर किंग के लिए. ठीक है. जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया है. सो यहाँ पर जो टाइगर हंटिंग है वो करना चाहता था ब्रिटिश ऑफिसर, तो महाराजा डिक्लाइन कर देता है उसके ख्वाहिश को, उसके विश को डिक्लाइन कर देता है. ठीक है. मना कर देता है. एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द स्टेट, अपने शहर को सिक्योर करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती हैं, महाराजा ने उन्हें 50 डायमंड के रिंग भेजी, यानी कि 50 हीरे की अंगूठी वो भेजते हैं. ठीक है. टाइगर किंग ने भेजा ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को, ताकि उसमें से कोई वो एक चूज कर सके और फिर वो वापस अपने जा सके. ठीक है. Within 10 years, the Maharaja successfully slays 70 tigers, but after that, there was no tigers left in Pratibandhanpuram. Okay,
Means within 10 years the Maharaja successfully slay 70 tigers, but after that there was no tiger left in प्रतिबंधनपुरम। यानी कि 10 साल के अंतर्गत में, यानी कि एक डिकेड में महाराजा ने 70 टाइगर्स को मार दिया प्रतिबंधनपुरम में, ठीक है। उसके बाद वहां पे कोई से भी टाइगर नहीं बचा हुआ था। Hence to complete his target of killing 100 tigers, he marries a girl from a royal state that has more tigers so that he can complete his target। यानी कि महाराजा ने एक अपनी ख्वाहिश जताई कि मैं अब शादी कर लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने अपने शादी के लिए प्रस्ताव रखा, बात किया कि अब यहाँ पे प्रतिबंधनपुरम में तो टाइगर नहीं है, मैं एक रॉयल स्टेट की वाइफ चाहूँगा, ताकि वहाँ पे बहुत सारी जो टाइगर अगर होगा तो मैं वहाँ जा करके उसको किल कर पाऊंगा और मेरा जो टारगेट है वो फुलफिल हो पाएगा। तो when he visits his in-laws, he makes sure that he kills 5 to 6 tiger each time. In addition, in his way, he was able to kill 99 tigers, but he was unable to find 100 टाइगर। यानी कि जब भी मतलब उनकी जो वाइफ थी, टाइगर किंग की जो वाइफ थी, जब भी जाती थी अपने घर, अपने मायके, अपने मैटरनल हाउस, तो टाइगर किंग जो थे वो 5 से 6 टाइगर हर समय मार दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने टारगेट को कंप्लीट करना था, ठीक है, इसीलिए। On not finding the 100 tiger, the Maharaja became violent and threatened to the Diwan. In order to save himself from the fury of the king, the Diwan got an old tiger from the circus and with great difficulty put him in the forest. यानी कि 99 टाइगर्स उन्होंने मार दिया था, ठीक है। टाइगर किंग ने ऐसे करते हुए 99 टाइगर्स को मार दिया था, लेकिन वो जो 100वां जो टाइगर था, जो 100 टाइगर था, वो उन्हें मिल नहीं रहा था, जिसके कारण जो महाराजा थे वो वायलेंट हो गए थे और थ्रेटेंड हो गए थे दीवान के ऊपर, ठीक है। उनका जो मंत्री था उनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रहे थे। तो खुद को बचाने के लिए दीवान ने एक ओल्ड टाइगर को, एक बूढ़े टाइगर को सर्कस से छुड़ा करके फॉरेस्ट में रख दिया कि मतलब टाइगर किंग देखेंगे और उसे मार देंगे तो उन्हें उतना फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगा। So he told Maharaja about the tiger. So Maharaja went on a hunt and shot the tiger and felt victorious and happy. But then again, he didn't. He didn't know his bullet missed and the tiger was alive and he only collapsed out of fear. No one was the guts to tell the truth to the king, so they killed the tiger and brought it in the grand. यहाँ पे ये हो रहा है कहानी, यहाँ पे कि if you will see here, तो यहाँ पे स्टोरी ही थोड़ा चेंज हो रहा है। जो 100 टाइगर था उससे महाराजा को क्या था, खतरा था, डेंजर था, ठीक है। तो महाराजा टाइगर को मारने ही वाला था, किल करने ही वाला था और उन्होंने शॉट मार दिया था, लेकिन वो शॉट जो था वो सही से लग नहीं पाया और फिर वो मर नहीं पाया टाइगर, ठीक है। और महाराजा को लगा कि वो टाइगर मर चुका है, बट वो जो टाइगर जो था अलाइव था, जिंदा था। तो किसी के अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि महाराजा आपसे शॉट छूट गया है, गलती बता नहीं सकते ना बड़े की, तो उनको थोड़ा फियर हो रहा था क्या मैं कैसे बताऊं, ठीक है। Lastly, the Maharaja was joyful and happy. So on his son's birth, he buys a wooden tiger as a gift for him. The tiger had rough edges and while playing with it, get a woodcut on his hand, which later on advances into an infection. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखिए, लास्टली जो था क्या था कि महाराजा ने बहुत ही जॉयफुल और हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके बच्चे का जन्मदिन था, उनके बेटी का जन्म दिवस आ रहा था। तो उन्होंने एक लकड़ी का जो टाइगर है वो परचेज किया अपने बेटे के लिए, अपने सन के लिए, ओके। दिस टाइगर हैड रफ एजेस, वो जो टाइगर था ना वुडन वाला, उसका जो एज था वो रफ एजेस था। एंड वाइल प्लेइंग विथ इट गेट्स वुड कट इन हिज हैंड विच लैटर ऑन एडवांसेस इनटू एन इन्फेक्शन, ठीक है। रफ एज से टाइगर किंग को कट लग गया, जो 100 टाइगर था उसे कट लग गया और जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है, टाइगर किंग की मौत हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर फेथफुली द 100 टाइगर ऑल्दो मेड ए वुड टेक इट्स रिवेंज एंड किल द किंग। यानी कि जो इस तरीके से जो 100 टाइगर था उसके द्वारा टाइगर किंग की मौत हो जाती है,
तो एस्ट्रोलॉजी जो था, जो प्रिडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजर्स ने, वो सही साबित होता है। तो कंक्लूजन ऑफ टाइगर किंग क्या निकल करके आता है? बाय मीन्स ऑफ द टाइगर किंग समरी द राइटर वांट्स टू से दैट नो वन कैन चेंज व्हाट्स रिटन इन डेस्टिनी नो मैटर व्हाट दे डू। यानी कि अगर आपकी किस्मत में जो भी चीज लिखा है वो चीज एनी हाउ होना ही होना है, ठीक है, चाहे आप उसको कितना भी बदल लो। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। दैट इज हियर इज ट्राइंग टू से। सो स्टूडेंट्स, आई डू होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और भी इंग्लिश के जितने भी क्लास 12th और 10th के वीडियोज़ हैं, मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, so that you will prepare for your board examination. So thanks for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.